Good morning, guys. Today we are start with your syllabus. This syllabus is on your screen. First, we have to discuss about the introduction, then microscopic and macroscopic point of view. Then after thermodynamic system and control volume, thermodynamic properties, state, process, and cycle. Then after thermodynamic equilibrium, quasi-static process. Then after pure substance, the vapor liquid solid phase in a pure substance, critical and triple point of a pure substance, then PVT surface, work and heat transfer, then point function and path function. After that, temperature and zeroth law of thermodynamics, and last one is the continuity. Okay, so what is the thermodynamics? We already discussed in my previous video. Thermodynamics is nothing but it is a branch of science that deals with heat and the force and their interaction. Okay, so simply they are told here. Thermo means heat or hot, and dynamic means power or the powerful. So the study of matter in motion. Therefore, they told that it is the study of heat related to matter in motion. Some of the writers are also write it in other terms like it is a science that deals with the interaction between energy and material science. It is the law of science which deals with relation among heat, work, and properties of the system which are in equilibrium. Okay. So remember any of the definition. Then after there are four basic laws. Zeroth law of thermodynamics, then first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and third law of thermodynamics. First law states the concept of temperature. Remember, the temperature is defined as the degree of hotness or coldness. So, zeroth law gives the concept of temperature and deals with thermal equilibrium position. Similarly, first law represents the concept of internal energy. Internal energy means if the body is placed at the upper surface of the hill, if it has the potential energy and the kinetic energy is zero. When we just push this stone from the top of the hill, its kinetic energy is become half of the potential energy, means potential energy is 5 and kinetic energy is 5. Similarly, when it's near to the ground surface or water surface, the potential energy is low, which is around 2, and kinetic energy is high, which is around 8. This is called conservation of energy principle. Okay, so फर्स्ट लॉ गिव्स कि अगर हमने 10 यूनिट एनर्जी किसी बॉडी में सप्लाई की है तो उसमें से वो क्या कर रहा है, 1 यूनिट जो है वो आउटपुट में दे रहा है और 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को वो स्टोर कर ले रहा है एज एन इंटरनल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि इट इंडिकेट द लिमिट ऑफ कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क एंड इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. ठीक है, मतलब हीट और वर्क कैसे एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं और इंट्रोपी की डेफिनेशन मतलब प्रिंसिपल जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो आपको डीप में पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में. इसी तरीके से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कंसर्न कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी का और डिफाइन करता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी. मतलब स्टेटमेंट ये दिया गया है कि अगर मान लो मैंने एक किलो कोल जलाया और इस 1 किलो कोल में कितना एनर्जी जो है वो यूजफुल एनर्जी है और कितना मतलब यूजफुल एनर्जी है उसको बाइफरगेट करने का काम जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करता है. ओके, सो अब आता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में बेसिकली 6 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है.
माइक्रोस्कोपिक में क्या, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसर्न करता है। इसे स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक भी बोलते हैं। यहाँ पे बिहेवियर का जो सिस्टम है वो स्टैटिक मेथड से फाइंड आउट होता है। काइनेटिक एनर्जी, इम्पल्स, मोमेंटम, ये सब जो है वो इसी प्रॉपर्टी के अंदर में आते हैं। और ये जो है मतलब माइक्रोस्कोपिक पॉइंट आपको सिस्टम जो है वो implicated in which large number of variables are required, मतलब ऐसी जगहों पे यूज होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। चलिए, मैक्रो मतलब छोटा, सॉरी बिग, बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा था, मैक्रो मतलब बड़ा। तो ये बड़े मतलब माइक्रो मतलब बिग और छोटा, ये जो है ये ओवरऑल या ग्रॉस बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसर्न करता है। इसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है और इसमें केवल मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही मतलब सिस्टम के बिहेवियर के बारे में हम जानते हैं। दूसरा, ये जो है मतलब इसमें जो वैल्यूज होती हैं प्रॉपर्टीज की, वो एक एवरेज वैल्यूज होती है और ये कम्प्लीटली मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस। हम खुद से ही देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी में कितनी प्रॉपर्टीज चेंज है। एंड अल्टीमेटली इट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम इज सिंपल इन विच ओनली फ्यू प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड। मतलब मैक्रोस्कोपिक में आपको कुछ ही पार्ट्स को कंसर्न करना पड़ेगा पूरे के पूरे सिस्टम के। चलिए, इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। एक्सेप्ट सिस्टम the outer except system, the part of universe is called surrounding। अब आता था बाउंड्री। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्चुअल और इमेजिनरी इन्वेलप enclose the system that separate the system from its surrounding। ठीक है, एक्चुअल या इमेजिनरी एक इन्वेलप जो सिस्टम को कवर कर रखी है और वो सेपरेट कर दी है सिस्टम को सराउंडिंग से। तो जनरली ये जो सिस्टम होता है, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज कर रहा है, द बाउंड्री में बी डायथर्मिक और एडियाबैटिक depending whether it allow or not exchange of heat in the not exchange the energy in the form of heat। मतलब क्या होगा, अगर आपको याद होगा तो आपने पहले बताया था कि एडियाबैटिक सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन वर्क का ट्रांसमिशन अलाउ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने बोला कि द बाउंड्री और वॉल डेट अलाउ हीट ट्रांसफर टू हैव प्लेस अक्रॉस देम आर कॉल्ड डायथर्मिक बाउंड्री। मतलब ऐसा वॉल जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करने देगा उसे हम डायथर्मिक बाउंड्री बोलते हैं, और जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने देगा उसे हम एडियाबैटिक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो सराउंडिंग ये यूनिवर्स क्या होगा, तो यूनिवर्स इज द समेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, चलिए अब आता है क्लोज सिस्टम। तो मैंने पहले बताया था कि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जहां हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकता है विद इन द बाउंड्री, बट एनर्जी का या मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब मास आपका कांस्टेंट रहेगा। चलिए, ओपन सिस्टम क्या होगा, तो हीट और मास या मास एज वेल एज एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, तो नाइदर हीट नॉर मास कैन बी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम्स और बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, इसके बाद आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।